Hello guys, welcome to Ashutosh Coaching. Now today we are going to starting a chapter name is living world क्या होता है। तो सबसे पहले इसका फोटो खींच दीजिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, यह तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, पहले तुम जानते हैं कि लिविंग फॉर लाइफ होता है क्या। लाइफ इज अ कैरेक्टराइज क्वालिटी एंड डिफरेंस इनिशिएट द लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एनिमल लिविंग फॉर्म्स। ओके, और सो ऑन। और कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा मेरे ख्याल से। अब बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। It is a degree of variability among the living organisms and include all the variation of the plants and animals and encompasses all ecological complex in which diversity occurs. The ecosystem, immunity, community and diversity, species diversity and the genetic diversity and comprises all the millions of species and the genetic differences between them. Systematic क्या होता है देखो। Systematic is a study of biodiversity attempt to classify the diversity of organisms on the basis of the following four shield which and identification, classification and nomenclature. Identification क्या होता है? The aim to identify the correct name and the position of the organism in the already established classification system and it done with the help of the key. A key is the list of alternate character found in the organism. An organism can identify easily by the selecting and the eliminating the character present in the key. Okay. और नथिंग मोर एल्स। ओके, अब क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन इट इन्वॉल्व्स द scientific group of the identified groups into the conventional convenient categories or taxa based on the some easily observable and the fundamental character and the various categories which show the hierarchy arrangement in the and the decreasement order जैसे species, genus, family, order, class, phylum, kingdom। अब नॉमेनक्लेचर क्या होता है समझो ध्यान से। देखो नॉमेनक्लेचर होता क्या है। After nomenclature, organisms are subjected to a format of two words. Naming system is called binomial nomenclature. It consists of two components, that is generic name and specific epithet. होता क्या है देखो, फॉर एग्जाम्पल इन मैंजीफेरा इंडिका में देखा जाए तो मैंजीफेरा जो है वो क्या है, जेनेटिक नेम है, और इंडिका क्या है वो स्पेसिफिक नेम है। दिस सिस्टम वॉज प्रपोज्ड बाय कार्लोस लिनियस स्वीडिश botanist and in the 1783 in his book Species Plantarum. The polynomial system of nomenclature is a type of naming system and the containing more than the two words, and the trinomial system is a component of a polynomial system of and the contain three words. Three words represent the subspecies and first words remain the same as in the binomial system. Codes for the binomial nomenclature क्या होता है। देखो नॉर्मली देखा जाए तो इसके 5 कोड्स ऑफ द नोमेनक्लेचर होते हैं जो कि अवॉइड करते हैं एरर डुप्लीकेशन को और एम्बिग्यूटी को एंड साइंटिफिक नेम। ओके, जैसे ICBM, ICZM, ICVM एंड ICNB एंड ICNCP। ओके, इसको भी ध्यान रखना है। ओके, और कोई दिक्कत हो तो बताना। किसी को कोई दिक्कत हो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये फुल फॉर्म और ये छोटा सा जो दे रखा है ये। उसके बाद क्या है, ICBM तुम लोग जान ली, फुल फॉर्म है, ये सब ध्यान रखना, इसका और कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। टैक्सोनॉमी होता है क्या समझो ध्यान से। टैक्सोनॉमी जो होता है, it deals with the principle and the procedure and of the identification, nomenclature and the classification of organisms, and it reflects the natural and the phylogenetic relationship among the organisms. It also provides the detail of the external and the internal structure and the cellular structure and the ecological information of the organism. The term taxonomy was coined by the E.P. de Candolle. ओके, एंड द वेरियस ब्रांचेस इसका, जैसे कि अल्फा टेक्नोमी के लिए है, मॉर्फोलॉजिकल ट्रेड्स, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के लिए है, हैबिटाट, मतलब नंबर टाइप्स दे रखा है। टेक्नोमी अलग अलग फील्ड होते हैं जिसको आप लोग काफ़ी इजीली याद कर लीजिएगा। ओके, एंड सो ऑन। अब कुछ होता है क्लासिकल टेक्सोनॉमी क्या होता है। क्लासिकल टेक्सोनॉमी एक ओल्ड टेक्सोनॉमी है जहाँ पे क्या होता है, टेक्सोनॉमी स्पेसिस इज द बेसिक यूनिट एंड द कैन डिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ द few of preserved specimen and organisms are classified on the basis of limited feature and modern
एंड न्यू सिस्टमा क्या होता है? द कॉन्सेस्ट सॉरी, अब देखो होता क्या है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो था नहीं। कह रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाज गिवन बाय द जूलियन हक्सली एंड 1940 में। अकॉर्डिंग टू दिस देखा जाए स्पेसिफिक द स्पीसीज आर द डायनेमिक एंड द एवर चेंजिंग entity and the studies of the organism are done on a huge number of the variation and it include the cytotaxonomy। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या होता है ना केमोटेक्सोनॉमी क्या होता है? देखो टेक्सोनॉमी जो होता है उसको कैटेगरी कैटेगरी होता है। इट इज़ नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, ये कोई सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। इट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप इन विच स्टेप रिप्रेजेंट रैंक एंड कैटेगरी। मतलब वही होता क्या है, देखो ये जो इसके अंदर बहुत सारे हायरार्की स्टेप को इन्वॉल्व की जाती है। हायरार्की स्टेप मतलब होता है इस चीज़ को एक सीक्वेंस से लिख के दिखाना से उसे हायरार्की बोलते हैं। सिंस द कैटेगरी ऑफ पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमी एग्रीमेंट, और यहाँ बहुत सारे जो कैटेगरी होते हैं उसके उसकी जो एग्रीमेंट होता है टेक्सोनॉमिक एग्रीमेंट जो होते हैं उसका पार्ट ओवरऑल करते हैं। मतलब उसके एक एक टेक्सोनॉमिक एग्रीमेंट को हम लोग एक उसकी कैटेगरी को समझते हैं और इसी को हम लोग टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी जो होता है विच आर ऑलवेज यूज इन द हायरार्कियल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसको ऑब्लिगेट कैटेगरी। ठीक है ना? तो हर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी जो होता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं हायरार्कियल क्लासिफिकेशन करने के लिए, जिसको हम लोग ऑब्लिगेट कैटेगरी भी कहते हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट कैटेगरी क्या होता है ये सब जानो। ओके, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो कैटेगरी के बारे में हमने ये जाना ये सब आज के। ठीक है, अब देखोगे सब कैटेगरीज लाइक सब स्पेसीज, सब क्लास, सब फाइलम विच फैसिलिटेट मोर साउंड एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट एंड ऑफ वेरियस टैक्सा एंड आर कॉल्ड इंटरमीडिएट कैटेगरी। अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इन a decreasing order during the classification of organisms is called a taxonomic category. It was introduced by the Linnaeus 1781 and hence it is also known as the Linnaeus hierarchy। ओके, ये कुछ दे रखा है उसका टैग, उसके बाद आगे हम लोग जानते हैं क्या होता है। टैक्सोन क्या होता है? टैक्सोन जो होता है रिप्रेजेंट अ रैंक ऑफ ईच category and represent a unit of classification and term as the and term was first introduced by the ICBM during the 1956 according to the Ernst Mayr या मेयर का दो 1964 में एक टेक्सोनॉमिक ग्रुप टेक्सोन का ग्रुप था ग्रुप ऑफ एनी रैंक दैट इज sufficiently distinct to the worthy and of being assigned and by a definite category. In a simple words, taxon refer to a group of similar and genetically related to the individual having certain character and distinct from those of the other group। Kingdom क्या होता है? Kingdom, it is the highest category in the taxonomy and they include all the organism and which is a set of a distinguished character। Phylum or division क्या होता है? It is a taxonomic category than the higher and the lower in the rank to the kingdom, and the term phylum is used to the for the animal while the division of is commonly employed for the plant and the consist of more than one classes having the some similar correlated character। क्लासेस lineage क्या होता है? इट इज़ अ मेजर कैटेगरी विच इंक्लूड द रिलेटेड ऑर्डर एंड ऑर्डर क्या होता है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वन और मोर related families and that possesses some similar correlated and character which are the lesser in the number as compared to the family or genera। फैमिली जो था उसको दिया था जॉन रे ने दिया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। ओके, ये सब जानना जरूरी है। ये काफ़ी इजीली वे में दिया हुआ है तो आप उसको समझ के याद रखें। ओके, और कोई डरने की बात नहीं है। तो इस सब को ध्यान में रख के इसको याद अब कर लीजिए, काफ़ी काम आएगा ये। और कुछ तो इसमें है नहीं, फिर भी मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत था नहीं। विच इंक्लूडेड ऑर्डर, ऑर्डर क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ मोर रिलेटेड फैमिली, इसमें बहुत सारे फैमिली आते हैं जो कि सिमिलर कोड रिलेटेड होते हैं विच आर लेजर इन द कंपेयर टू फैमिली जनरा। ओके, और इसी तरह फाइनली लास्ट हमारा मतलब इसको फैमिली है। फैमिली क्या होता है? देखो जहाँ पे ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा विथ लेस नंबर ऑफ similarity and compared to the genus and species, all the genera of a species have some common or correlated feature, they are separable from the genera of a related family by the important difference in the both vegetative and the reproductive feature। genus क्या होता है? the term given by the genre, it comprises a group of related which species which has more character common in the comparison to a species of genera। in the other words, genera are the
एग्रोगेट्स ऑफ द क्लोजली रिलेटेड टू द स्पेसिस। स्पेसिमन क्या होता है? स्पेसिस टेक्सोनोमिक स्टडीज कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद द फंडामेंटल सिमिलरिटी एज अ स्पेसिस जॉनर। It is the lowest or the basic taxonomic category which consists one of the of one or more individual population. अब taxonomic aids क्या होता है समझो। taxonomic aids में कुछ टाइप्स रखे हैं। क्या taxonomic aids क्या होता है समझना है हमको, और कुछ नहीं है। ये हमारा मे बी लास्ट हो सकता है इस चैप्टर का, तो हम इस चैप्टर को बड़ी शॉर्टली मिले जा रहे हैं। देखो क्या क्या है, इसको नोट करके याद कर लीजिए। हर्बेरियम क्या होता है, मैनुअल क्या होता है, मोनोग्राफ क्या होता है, और की क्या होता है, म्यूजियम क्या होता है, ये सब चीज़। ओके। टैक्सोनॉमिक एड्स क्या होता है? दे इंक्लूड द टेक्निक एंड द प्रोसीजर एंड द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन दैट यूजफुल इन द आइडेंटिफिकेशन एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। सम ऑफ द टैक्सोनॉमिक एड्स आर फॉलो, दे रखा है जैसे कि हमारा कुछ हर्बेरियम हर्बेरियम एक शीट होता है जहाँ पे किसी चीज़ को सेव किया जाता है। म्यूजियम एक जगह होता है जहाँ पे किसी जानवर को रखा जाता है, की तो आप जानते हैं, उसका यूज़ करके हम लोग किसी को आइडेंटिफाई मतलब पहचानते हैं। और मैनुअल क्या आता है, बुक टाइप का आता है जिसको हम लोग देख के हम लोग नॉर्मली किसी चीज़ को दिए गए जानवर के बारे में जानते हैं। अब देखो ये लोग मोनोग्राफ क्या होता है, ये ऐसा कोई बुक या कोई पेज जहाँ पे एक ही जानवर के बारे में दे रखा हो। अभी कोई बोटैनिकल गार्डन जो जो प्लांट या एनिमल को किसी पार्क में रख के दिखाना है, अभी किसी जगह पर रख के दिखाना है, बोटानिकल पार्क या जूलॉजिकल पार्क कहते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी एट क्या होता है? इट द एड्स हेल्प टू द स्टोर एंड द प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन एज वेल एज द स्पेसिमेन एंड द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ द प्लांट and the special and the animal species is essential and is the primary source of the taxonomic studies. Okay, कहा गया है these are also essential for the name training and is a systematic which is used for the classification of an organism. Hence taxonomic aids facilitate identification, naming and the classification of organism and using an actual specimen collected from the field and the preserved as a referred in the form of herbaria and the museum etc. So guys, thanks for watching video till the end and don't forget that you are a part of journey of NEET. सो इस पूरे प्लेलिस्ट में हमें 38 चैप्टर को रिकवर करना है। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके।